Good evening, 8th class. And today I'm going to discuss with you your second chapter, that is the growth of nationalism and the age of revolution. और इस चैप्टर की मज़ेदार बात यह है कि there are number of incidents that we are going to discuss, and study material you have already it has been uploaded on the web school website. Definitely I hope you have written the questions on your notebooks, right? Well, if you haven't done it, so please do it, right? So let's start with the growth of nationalism and the age of revolution. Why we are reading this chapter? Because everyone needs nationalism. हम सभी को ज़रूरत है nationalism की. देश के प्रति जो प्यार भाव है उसकी ज़रूरत सभी को रहती है, होनी भी चाहिए, right? अगर नहीं है तो वो गलत चीज़ है. तो कैसे ये शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ना ये एक ज़रूरी बात हो जाती है. दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर एंड रीड अबाउट द American War of Independence and the French Revolution. Let's start with the meaning of nationalism first. As you can see that I have written here, a strong feeling of love and loyalty which a people have for their own country is known as the nationalism. अगर इसमें से थोड़ा सा expand करूँ, right? अगर मैं इसे expand करूँ तो मैं ये निकालूँगा इसका मकसद मीनिंग. नेशनल प्लस इज़म. इज़म होता है बिलीफ, विश्वास. किस में विश्वास है? जो चीज़ें नेशन से जुड़ी हैं, मीन्स दोज हू आर विच आर नेशनल. नेशन से जुड़ी चीज़ें क्या हैं? पीपल, लैंग्वेज, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, कल्चर, सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी. एंड इफ़ यू आर हैविंग बिलीफ इन ऑल दोज थिंग्स, right, it means you are having a feeling of nationalism, you are having a feeling of love and loyalty for your own country. ठीक है, यही nationalism है. feeling of love, loyalty, feeling of oneness and togetherness, feeling of loyalty and love is called nationalism. Let me read it for you. कहाँ से ये शुरू होता है? Nationalism arises when people share feeling and experiences with each other. Definitely people are the most important thing when it comes to nation. See, there is a difference between a nation and a country. Country means a geographical area having a boundary. लेकिन हम country की जब definition देते हैं तो उसमें हम people, we didn't include people. हम इन peoples को include नहीं करते, right? We don't include people. लेकिन जब हम nation की बात करेंगे तो हम लोग कहते हैं कि a geographical area having a boundary along with its people is called nation. People हैं तो definitely there were number of other things will be there. और उन चीज़ों में अगर आपका विश्वास है, आपकी भावनाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं, आप एक दूसरे के साथ जुड़े हो, then it is called nationalism. It may include a common language. हो सकता है common language हो, नहीं भी हो सकता. It is not a big deal. Right, in India 28 states are there and each and every single state is having a different language. हर एक स्टेट की अपनी एक, हर एक राज्य की अपनी भाषा है, फिर भी हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं. वी आर वन नेशन, राइट? तो दैट इज़ वाई इट सेज मे. इट मे इंक्लूड वन कॉमन लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, सोशल ऑर्डर, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन एट्सेट्रा. पैट्रियोटिज्म इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ नेशनलिज्म. तो नेशनलिज्म क्या है? इट इज़ अ बिग टर्म, एक लार्ज टर्म है. तो सिग्निफाई कर दिया जाता है या उसे एक प्राय के रूप में देखा जाता है. पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना. लेकिन देशभक्ति की भावना से थोड़ा ये चीज़ बड़ी हो जाती है, हर एक चीज़ के साथ आपका जुड़ाव होता है. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम अप विद द अमेरिकन रेवोल्यूशन इन 1776 एंड 1783. दिस इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी. Second thing is the French Revolution in 1789. Many rulers, अब था क्या यहाँ पे? Many rulers appointed by the people suppressed popular revolts, put restrictions on the press and curbed all form of liberalism. ये तब की बात है जब राजा रूल कर रहे थे. तो जब राजा रूल कर रहे थे तो people were under the subjugation of that king. and ये खो क्या रहा था यहाँ पे कि उनकी freedom जो थी उसे suppress कर दिया जाता था. In 19th century, nationalism rose like a tidal wave which played an important factor in the development of Europe. हम बात कर रहे हैं beginning of the 18th, at the last of the 18th century and the beginning of the
19th सेंचुरी की, राइट। तो यहाँ पे एक नई सोच, एक नया विश्वास जन्म लेता है जिसे नाम दिया गया नेशनलिज्म। अपार्ट फ्रॉम इट, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टाइटल, दैट इज़ एज ऑफ रेवोल्यूशन। इसे एज ऑफ रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है? रेवोल्यूशन होता है सडन चेंज इन द लाइव्स ऑफ द पीपल, और किसी भी चीज़ में अगर सडन चेंज है तो वो रेवोल्यूशन है। द नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स टुक प्लेस एट दैट टाइम, जिसने इंसान की पूरी ज़िंदगी को एकदम से तब्दील कर दिया, यूँ तब्दील कर दिया है। इट ब्रॉट सो मैनी चेंजेस हर एक एस्पेक्ट्स में, सोशल में, रिलीजन में, या पॉलिटिकल में, इकोनॉमी में, हर एक चीज़ में नई चेंजेस आ गई, और चेंजेस एकदम से आई। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द एज ऑफ रेवोल्यूशन। एंड मोर ओवर वी सॉ 2 डिफरेंट रेवोल्यूशंस, राइट। हमने 2 रेवोल्यूशन देखे, वन इज़ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेकेंड इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लेट्स डिस्कस द कॉजेज ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।